Kindly turn with me to Psalm 34. We will meditate, then we worship. मेहरबानी करके मेरे साथ मज़ामीर चैप्टर 34 देखें और उसके साथ हम मुताला करके इबादत करेंगे। Psalm 34, we shall read first 10 verses responsively. पहली 10 आयतें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. मेरी रूह यहोवा पर फख्र करेगी, हाल ही में सुनकर खुश होंगे। Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. मैं यहोवा का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। I sought the Lord, and they looked upon him, and they were lightened, and their faces were not ashamed. इस गरीब ने दुहाई दी, यहोवा ने उसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। Verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth them. आजमा कर देखो कि यहोवा कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। Oh, fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर यहोवा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। Let us pray. दुआ करेंगे। Our loving Father, we thank you and praise you for the opportunity granted to come to our house, spend some time and singing thee, praising thee and worshipping thee. Thank you for the portion of the scriptures just now we read and expounded the word unto us, so that we may be filled with the spirit of worship. Our worship may be acceptable unto you. May the Holy Spirit help us. In Jesus' precious name we pray. Amen. So this psalm is a psalm of David. अजीजों, हम देखते हैं कि ये मजमूर जो है ये दावीद बादशाह का मजमूर है। David, he underwent a lot of difficulties in his days. दावीद ने अपनी जिंदगी के अय्याम में बहुत सारी मुश्किलात उठाई। He was filled with fears. उसके दिल में बहुत सारे खौफ थे, डर थे। And in all his fears, God has delivered him. अपने सारे डरों से खुदा ने उसे बचा लिया। He is filled with gratitude and praising the great God. इसीलिए उसके दिल में शुक्रगुजारी थी और खुदा की हम्द सना वो करने लगा। He says in verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. पहली आयत में इसीलिए वो कहता है, मैं हर वक्त यहोवा को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। He says, I'll bless the Lord at all times. वो कहता है हर वक्त यहोवा को मुबारक कहो। All time. Morning, evening. हर वक्त मतलब सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी। And good days and bad days. अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो। And joy and sorrow. खुशी में, गम में। All time he wants to worship the Lord. हर वक्त वो खुदा की सिताइश करना चाहता है। And he says, his praise shall continually be in my mouth. और वो कहता है उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। What a wonderful man of God, praising God all the time. खुदा का कितना अच्छा सा बंदा है, देखें कि वो हमेशा हर वक्त खुदा की हम्दो सना गाता है। So we also must worship the Lord all time. इसीलिए हमारी जिंदगियों में भी हमें भी हर वक्त खुदा की सिताइश में रहना चाहिए। He says in verse 3, तीसरी आयत में वो कहता है, Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। So he invites everyone to exalt the great God. और इसीलिए वो हर एक शख्स को मद्दू करता है, बुलाता है कि आकर इस अजीम बड़े खुदा की बड़ाई करे। Our God is a great God. हमारा खुदा अजीम खुदा है। He dwells in lights that no man can approach unto. वो इस तरह की रोशनी में, नूर में रहता है जहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं होती। Heaven is his throne, earth is his footstool. आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांवों की चौकी है। By the word of his mouth he created everything. और अपने मुंह के कलाम से उसने सब चीजों को, हर चीज को पैदा किया। On the earth, in the sea and also in heaven came into existence by the word of his mouth. जमीन के ऊपर की चीजें, जमीन के नीचे, समुद्र के अंदर की और आसमानों की हर चीज भी उसके मुंह के कलाम से पैदा हुई। He says, I am the Almighty God. वो कहता है इसीलिए कि मैं
कादिर मुतलक खुदा हूँ। He has a power to create and power to destroy. उसके पास पैदा करने की ताकत है और हर चीज को तबाह करने की ताकत भी है। Yeah, his name is great and greatly to be praised. उसका नाम अजीम है और वो लायक है इस कदर कि उसकी हम्दो सना हर एक इंसान करे। Yeah, his name is a holy name. उसका नाम पाक है। So, since his name is holy, all the time he is praised by celestial beings, since not day and night, holy, holy. और क्योंकि उसका नाम पाक है, आसमानी लश्कर से वो हमेशा सिताइश में या हम्दो सना में रहता है और आसमानी लश्कर सना गाती है कि वो लायक है। Psalm 99 देखें तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 99 and verse 3. 99 की ये 3। Let them praise the great and terrible name, for it is holy. 99 की 3, वो तेरे बुजुर्ग और मुहीब नाम की तारीफ करें, वो कुद्दूस है। Then again verse 5. और 5वीं आयत, Exalt ye the Lord our God and worship at his footstool, for he is holy. तुम यहोवा हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पांव की चौकी पर सिजदा करो। Then verse 9. 8वीं आयत, Yeah, exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. तुम यहोवा हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके मुकद्दस पहाड़ पर सिजदा करो, क्योंकि यहोवा हमारा खुदा कुद्दूस है। So what a wonderful God. कितना ही अजीम खुदा है ना। Holy God, वो कुद्दूस खुदा है who is likened him, और glorious in holiness. उसकी मानिंद जलाल में कोई और उसका बराबर नहीं है। Yeah, no one compared with him in his holiness. उसकी पाकीज़गी में उसका बराबर कोई नहीं है। Then when we read book of Isaiah chapter 6, अब हम पढ़ेंगे एशिया की किताब बाब नंबर 6। yeah, here the great God who is seated on the high and the lofty throne यहाँ is पे- being worshipped as holy, holy. यहाँ पे हम देखते हैं उस बुलंद अजीम खुदा को जो आसमानों में तख्त नशीन है और उसको लेकर और उसको आसमानी फरिश्ते उसके बारे में उसकी इबादत करते हुए कुद्दूस 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 करके गाते हैं। Yeah, the seraphims, verse 2. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings, and the twain covered face, and the twain covered feet, and with the twain he did fly. आयत नंबर 2, उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। And verse 3, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. तीसरी आयत, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। So our God is a holy God. तो हमारा खुदा जो है वो पाक खुदा है। Our God is a almighty God. वो कादिर मुतलक खुदा है। He is a merciful, gracious and compassionate God. वो अरहम राहमीन है, वो बहुत रहम वाला और करम करने वाला खुदा है। Yeah, Psalm 36 और पढ़ेंगे हम तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 36 and verse 5. और वर्स नंबर 5। Thy mercy, O Lord, it is in heavens. Thy faithfulness reaches unto the clouds. 36 की 5, ए होवा आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है। Verse 6. आयत नंबर 6, Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgments are great deep. O Lord, thou preservest man and beast. तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिंद है, तेरे अहकाम निहायत अमीक हैं। ए होवा तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। Yeah, this great God has done great things for us. ये अजीम खुदा जो है हमारे वास्ते भी बहुत अजीब और गरीब काम किए हैं। Yeah, David says, I sought the Lord, he delivered me from all my fears. दाविद ने कहा कि मैंने खुदा का तालिब हुआ और मेरे हर दहशत से खुदा ने मुझे रिहाई बख्शी। Yeah, so also God has delivered us from
all our fears. इसी तरीके से हमारे खुदा ने हम सबों को भी हम सबों के दहशतों से खुदा ने रिहाई बख्शी। Yeah, of all the fears, the greatest of that is the fear of death. और हम जानते हैं कि हर दहशत या डरों में से सबसे अव्वल डर ये होता है कि मौत का डर। So how great he is, how old a man is, and he never wants to die because of the fear of death. A person may be great or maybe of a good old age, he is not willing to die. एक इंसान बहुत उम्र रसीदा होने के बावजूद भी वो चाहता है कि वो ना मरे, Because the fear of death. क्योंकि उसके अंदर मौत का डर रहता है। Everyone has the fear of death. इसी तरीके से हम देखते हैं कि हर इंसान के अंदर मौत का डर बसता है। That's what they make ways to protect their lives. इसीलिए बहुत तरीके अपनाते हैं जिनसे अपनी जिंदगी को और तवील करें। Yeah, we were also lifetime subjected to bondage of sin and also the fear of death. और हमारी जिंदगी में हम भी गुनाह के बोझ में रहते थे और हम भी मौत के डर में रहते थे। In order to deliver us from the fear of death, Lord Jesus Christ, the Son of God, left all his glory, came to this earth, took a form of a man, suffered and died for our sins. और हमको इस मौत के डर से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए हमारे खुदावंद यीशुआ, खुदा के बेटे ने अपने तमाम जलाल को छोड़कर इस दुनिया में आया ताकि हमें मौत के डर से छुड़ाए। Yeah, delivered us from the fear of death. मौत के डर से हम सबों को उसने छुड़ाया। He conquered death. उसने मौत पर जीत हासिल की। Because of disobedience, Adam and Eve, they were filled with fear. आदाम और खव्वा ने जो गुनाह किया था उसका अंजाम था मौत और मौत का डर। And glory departed from them. और आदाम और खव्वा से खुदा का जलाल जो उन पर था वो निकल गया था। The Lord said, the day when you eat this fruit, and surely you die. क्योंकि खुदा ने उनसे कहा था जिस दिन तुम इस पेड़ में से खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। Yeah, the physical death did not take place, but spiritual death immediately took place. जिस्मानी तरीके से वो लोग यकाएक उसी वक्त मर तो नहीं गए, लेकिन उनके अंदर रूहानी मौत समा गई। They are separated from God. मतलब खुदा से दूर हो गए। What a terrible thing it is. ये कितना ही हैरतनाक बात है ना। Yeah, since then all were separated from God. उस वक्त से लेकर अब तक हर एक इंसान खुदा से जुदा है। Yeah, filled with the fear of death in our lives. हमारी जिंदगियों में हम मौत के डर से हम डर उठते हैं। Everyone in the world has the fear of death. इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर मौत का डर बसता है। Yeah, by dying on the cross, Jesus Christ, he brought victory over death. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ सलीब पर मौत सहकर हम सबों के लिए जीत हासिल की। Yeah, Hebrews chapter 2 इब्रानी की किताब बाब नंबर 2 and verses 14 and 15. 2 की 14 और 15। For as much as then the children are partakers of the flesh and the blood, he also himself likewise took part of the same, and through death he might destroy that power of the death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ ताकि मौत के वसीले से उसको जिससे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी मुफ्तरी को तबाफ कर दे और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। That's what the Lord Jesus Christ, he became a man, took a form like us, he went to the cross and suffered and died for our sins. इसीलिए खुदा का बेटा यीशुआ ने हमारे वास्ते जिस्म में पैदा हुआ, जिस्म में जाहिर हुआ, सलीब पर गया और हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। Wonderful Savior. बहुत अजीम और नजात दहिंदा है। Suffered, died, buried, rose again on the third day. हमारे वास्ते सलीब पर अजियत उठाई और वफात पाई और गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर गालिब होकर जी उठा। So on the cross he has bruised the head of the enemy Satan. और इस तरीके से सलीब पर अपनी जान देते वक्त खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? सातान के सर को, सांप के सर को उसने कुचल डाला। He has destroyed death.
मौत को भी उसने तबाह कर दिया। Yeah, in 1 Corinthians chapter 15, 54 says, death is swallowed up in victory. पहले कुरिन्थियों की किताब चैप्टर 15 वर्स 54. 54 में लिखा हुआ है कि मौत फतह का लुक्मा हो गई। Yeah, death is swallowed up in victory. मौत फतह का लुक्मा हो गई। Yeah, oh, verse 55, oh death, where is the sting? Oh grave, where is the victory? 55वीं आयत, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। You got victory for us. हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ ने जीत हासिल की है। What a wonderful Lord. कितने ही अजीम खुदावंद है ना। Yeah, He has delivered us from the fear of death. उसने हमें मौत के डर से छुड़ा लिया। Yeah, so now we are fearless people. अब हम क्या बन गए, निडर लोग बन गए। Yeah, we have no fear of death. हम बेखौफ रहे, मौत की डर अब नहीं है। If we die, we go to heaven. अगर हम अब भी मरें तो सीधा आसमान में खुदा के पास चले जाएंगे। Because Jesus Christ, He died and took away all the curse and punishment were upon us, and He has freed us from all such fears. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर अपनी जान देते वक्त हमारी सारी सजाएं, हमारी सारी खुदा की सजा जो थी हमारे ऊपर और मौत जो थी हमारे ऊपर, उन सबों को अपने ऊपर ले लिया और हमें छुड़ा लिया। Yeah, now we have no more condemnation, pass from death into life. अब हमारे ऊपर किसी तरह की सजा नहीं है, हम मौत से जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। Yeah, we need not to stand before the judgment seat of Christ. Now we are escaped from the wrath of God because our sins are forgiven. अब हम अदालत में नहीं आएंगे क्योंकि हमारी खताएं और हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा मिला है, हम खुदा के पास पहुंचेंगे। Yeah, John's Gospel chapter 5, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 5 verse 24. और आयत नंबर 26। Yeah, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. 24 मैं 424 Now, 24 खुदा रूह है। नो 524 5:24. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। Yeah, no more fear, अब डर की गुंजाइश ही नहीं, any sort of fear, किसी तरह की डर नहीं, because the Lord is with us. क्योंकि खुदावंद यीशुआ हमारे साथ हैं। He made his abode in us. वो हमारे अंदर आकर अपनी रहाइशगाह बना ली है। The Spirit of God dwells in us. खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहता है। We became the temple of God. हम खुदा की हैकल बन चुके हैं। Yeah, no fear of any sort in our lives. हमारी जिंदगी में किसी तरह का डर अब नहीं रहा। David said, He has delivered me from all of my fears. दाविद ने कहा कि खुदा ने मेरे सारे डरों से मुझे छुड़ाया। Yeah, blessed God, worthy to be worshipped. कितना ही अजीम खुदा है ना, ये इबादत का लायक खुदा है ना। Then secondly, और दूसरी बात, and chapter 34 Psalm verse 5. तहलीम की किताब चैप्टर 34 वर्स 5। Yeah, they looked upon him, looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। Yeah, because of sin, and we could not see the face of God. गुनाह की वजह से हम खुदा का नूर या खुदा का चेहरा हम देख नहीं सकते। Yeah, Adam and Eve before the fall, they were with the Lord, and God of heaven was walking with them and talking with them. आदम और खवा दोनों ने गुनाह करने से पहले आसमानी खुदा उनके साथ रहता था, उनके साथ टहलता था। Now after sin and after disobedience, and they hid themselves from the presence of God. अब गुनाह करने के बाद क्या हुआ, वो लोग जलाल से महरूम होने की वजह से खुदा से भागकर अपने आप को छिपा लिए। Yeah, because they are ashamed. क्योंकि वो लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करने Glory लगे, departed. क्योंकि उनसे खुदा का जलाल चला गया। They were naked. वो लोग पूरा का पूरा नंगे बन गए। Yeah, covered themselves with the leaves. इसीलिए अपने आप को पत्तों से ढांप लिए। No guts to stand before the holy, great, awesome God. उस अजीम ताकतवर जलालवर खुदा के सामने खड़े होने की औकात उनकी नहीं रही। Because of our sin,
he also could not go into the presence of God. इसी तरीके से हमारे गुनाहों की वजह से हम भी खुदा की नजदीक हम पहुंच नहीं सकते हैं। God out of his mercy through Lord Jesus Christ, and he has given us the garments of salvation. लेकिन खुदा ने अपनी बड़ी रहमत के मुताबिक खुदावंद यीशुआ में हम सबों को नजात के लिबास पहनाए हैं। In the Garden of Eden, God gave Adam and Eve coats of skin, and for us the garments of salvation. बागे एदेन में खुदा ने आदम और खव्वा को खुदा ने चमड़ों की लुंगियां बनाकर दी, लेकिन हमारे वास्ते खुदा ने नजात के लिबास बख्शे। Animal was killed in the garden and to provide them garment. आदम और खव्वा के लिए बागे एदेन में एक जानवर को खुदा ने ज़बह किया और उनको लिबास बना के लुंगियां बना के दी। In order to give us glory, Jesus Christ, he left his glory, died for our sins on the cross of Calvary. लेकिन हमको नजात देने के लिए, गुनाह से छुटकारा बख्शने के लिए जलाल का खुदा यीशुआ सलीब पर हमारे वास्ते गुनाह उठाकर मौत सहा। Because of sin, no joy in our lives. हमारी जिंदगियों में तो गुनाह की वजह से खुशी नहीं रही थी, But now God has forgiven our sins through the blood of Jesus Christ and given us joy unspeakable and full of glory. लेकिन अब खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने बेटे यीशुआ के खून में हमें धो करने को पाक करके, हर गुनाह से हमें पाक करके हमें उस तरह की खुशी बख्शी है जो जलाल से पुर है और जाहिर करने से ज़ुहूर करने से भी वो पूरा हम जाहिर नहीं कर सकते। First Peter chapter 1 verse 8. पहला पत्रस 1:8। Not seen, but you are given the glory of God. हम तो अभी देख नहीं सकते Joy of the हैं, Lord. लेकिन खुदा की खुशी हमें बख्शी गई है। Please read. First Peter 1:8. 1:8 पहला पत्रस 1:8। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। He has filled with joy unspeakable and full of glory. हमें खुदा ने इस तरह की खुशी से भरी है जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। Because of sin, we were living in sorrow, living in fear, living in remorse. गुनाह की वजह से हम तो बहुत गमज़दा हुए थे और बहुत पछतावे की जिंदगी और बहुत नाखुशी की जिंदगी हम जीते थे। Now God has changed all such a terrible conditions in our lives. लेकिन खुदा ने अब हमारी जिंदगियों में से इस तरह के हर हालत निकाल दिए हैं। David says in Psalm 30 verse 11. दाविद कहता है मज़ामिर की किताब चैप्टर 30 और आयत नंबर वर्स 11 में, Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth, girded me with gladness. तेहलीम की किताब 30 की 11। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमरबस्ता किया। Now God has given us the joy of salvation. खुदा ने अब हमें नजात की खुशी बख्शी है। Because of salvation we got joy. हमारे नजात के सबब से हमें अब खुशी मिली है। What a wonderful God. कितना ही अजीम खुदा है ना। Turned our sorrow into mourning, into joy. हमारे मातम को वो खुशी में, नाच में बदल दिया है। Isaiah chapter 61. एशिया की किताब बाब नंबर 61। And here we are told the wonderful things what God has given to us. और यहाँ पे ऐसी बातें हमें बताई गई हैं जो खुदा ने हमारे वास्ते किया है। Verse 3. आयत नंबर 3। 61 verse 3. 61 की 3। To appoint unto them that mourn in Zion, give them unto the beauty for ashes, oil for the joy for mourning, and the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called the trees of righteousness, planting of the Lord, that he might be glorified. सियोन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर
मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। Yeah, garment of praise. यहाँ पे लिखा हुआ है खुशी गारमेंट्स ऑफ Garment of praise. खुशी सिताइश का खिलत। Yeah, verse 10. आयत नंबर 10। I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, as a bride adorned herself with her jewels. मैं यहोवा से बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिल्लत से मुझे मुलब्बिस किया और दुल्हा सहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने ज़ेवरों से अपना सिंगार करती है। Yeah, the garments of salvation and the robe of righteousness. यहाँ लिखा हुआ है नजात के कपड़े और रास्तबाजी की खिलत। Yeah, when we go to heaven and he will give the glory to us. जब हम खुदा के पास आसमान में पहुंचेंगे तो वो हमें जलाल देगा। What Adam and Eve they lost because of disobedience, and through the obedience of the lost Adam, Jesus Christ, we will put on the glory what Jesus Christ has. नाफरमानी की सबब से जो जलाल आदम और खव्वा ने बागे एदेन में खो दिया था, उसी जलाल को खुदावंद यीशुआ की फरमान बरदारी की वजह से खुदा फिर हमें देगा और हम उस जलाल से मुलब्बिस होंगे। We shall be like him as he is when we see him. और जब खुदावंद यीशु आएंगे हम उनको देखेंगे और जैसे ही उन्हें देखेंगे जैसे वो हैं हम उनकी तरफ बदल जाएंगे। Are you not blessed people to receive what the first Adam and Eve lost in Christ Jesus? क्या उन दिनों में पहले आदम और खव्वा ने खो दिया था, उस जलाल को आज खुदावंद यीशुआ में पाने के लिए क्या आप लायक नहीं हैं? Now we are not ashamed. अब हम शर्मिंदा लोग नहीं रहे, We are joyful हम खुशी मनाने वाले लोग बन गए हैं, because our sins are forgiven. क्योंकि हमारे गुनाह हैं जो हैं मुआफ किए गए हैं। One day we will have the glory. एक दिन हम जलाल हासिल करेंगे। We are called unto the glory of Jesus Christ. खुदावंद यीशुआ के जलाल को हासिल करने के लिए आपको खुदा ने बुलाया। Yeah. Thirdly, तीसरी बात, and verse 7, Psalm 34 verse 7. मज़ामीर की किताब चैप्टर 34 वर्स 7। The angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth them. यहोवा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। Yeah, since God made us his children and he watches over us. जब से खुदा ने हमें अपने बच्चे बना लिए वो हम पर अपनी नजरों निगाह रखता है। His eyes are upon us. उसकी आंखें हमारे ऊपर हैं। He protects us. वो हमें महफूज रखता है। Psalm 3 verse 18. 30 Psalm 33 verse 18. तहलीम की किताब 33वां बाब और 18वीं आयत। Yeah, behold, the eyes of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. देखो यहोवा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। Yeah, his eyes are upon us. उसकी आंखें जो हैं हमारे ऊपर हैं। He protects us by his angels. वो अपने फरिश्तों को भेजकर हमारी हिफाजत रखता है। Yeah, the angel of the Lord encampeth around us. इसीलिए खुदा का फरिश्ता जो है वो हमारे चौगिर्द खैमाजन होता है। What a wonderful God. कितना ही अजीम खुदा है ना। He is mindful of us. वो हमारे बारे में फिक्र करता है। Ever since we born in the family of God, he protects us. जब से हम खुदा के घराने में पैदा हुए तब से वो हमें हिफाजत से रखता He है। is mindful of us. वो हमारी फिक्र करता है। God who protects us. हमारा खुदा हमारे मुहाफिज है। Then fourthly, और चौथी बात, he is the Lord who satisfies us. हमारा खुदा वो है जो हमें बहुत मुतमईन करता है। He supplies all our needs. हमारी हर हाजत वो रफा करता है।
Verse 9. आयत नंबर 9। Yeah, fear the Lord. Oh, fear the Lord, ye saints, for there is no want to them that fear him. यहोवा से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। Yeah, even the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर यहोवा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। He is mindful of supplying all our needs. खुदा हमारी हर हाजत पूरा करने के लिए वो फिक्र करता है। He brings a satisfaction in हमारे our soul. हमारी जान में वो जान में हमें वो मुतमईन करना चाहता है। Yeah, he is mindful of us. वो हम पर हमारा फिक्रमंद है। Through his word, through his house, he brings satisfaction in our lives. अपने कलाम से, अपने घर के जरिए से खुदा हमारे अंदर खुशी और इत्मीनान पैदा करता We है। are satisfied people. हम मुतमईन लोग हैं। Psalm 36 verse 8. चैप्टर 36 की 8वीं आयत। They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. Thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. 36 की 8। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे, तो उनको अपनी खुशनुदी के दरिये में से पिलाएगा। For our salvation, we had no satisfaction. हमारी नजात से पहले हमें किसी तरह की खुशी नहीं थी, Yeah, but now we have joy. लेकिन अब हमारे अंदर खुशी है, We have satisfaction. हमारे अंदर इत्मीनान है। How it has come? किस तरीके से वो आया? It is by the Lord. क्योंकि खुदावंद यीशुआ के जरिए से। Yeah, through his finished work on the cross, he has forgiven our sins. खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर जो काम किया है, जो काम तमाम किया है और हमारे गुनाहों को मुआफ किया है, Willingly, he allowed his body to be broken. उसके वास्ते खुदावंद यीशुआ ने चाहते हुए अपना बदन तोड़ने के लिए दे दिया। He has given us joy unspeakable, full of glory. इसीलिए बयान से बाहर और जलाल से भरी खुशी हमारी हुई। No more fear of death. अब मौत का डर हमारे अंदर नहीं है। He is a wonderful Lord. वो बहुत अजीम खुदावन है। He has given us joy. He has given us the garments of salvation, robe of righteousness. उसने हमें खुशी दी है और नजात के कपड़े दिए हैं और खुशी से कमरबस्ता किया He है। is protecting us. वो हमें हिफाजत से महफूज रख रहा He is है। abundantly satisfying us. वो कसरत से हमें सैर कर रहा है। It's the experience of David. ये है दावीद का तजर्बा। It's our experience also. ये हमारा भी तजर्बा है। Yeah, so let us praise him and worship him. इसीलिए आज हम उसकी हम्दो सना गाएंगे, उसकी सिताइश बजा लाएंगे।